हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का जो है ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4। इसमें हम करेंगे एवोल्यूशन ऑफ द लैंड फॉर्म ड्यू टू द इंटरनल फोर्सेस, यानी पृथ्वी के आंतरिक बलों के जो है परिणाम स्वरूप भू आकृतियों का जो है विकास किस प्रकार हुआ, इसके विषय में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। ये टॉपिक जो है कई मानने में कई क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो 9th हो, 8th हो, 10th हो, +1 हो, +2 हो, तो सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, सभी बोर्डों के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर उनके टॉपिक में एवोल्यूशन ऑफ द लैंड फॉर्म ड्यू टू इंटरनल फोर्स है तो ये टॉपिक अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो। ठीक है, व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनआईएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Today doing a most important chapter here, evolution of the land form due to the internal force, and the most important topic arrive here are volcanoes. Volcanoes here is the most important topic. Have you ever to the seen an active volcano? Even if you have never to seen a volcano, is you have probably seen to the picture of film or everything to the volcanoes. This is a conical is a form or example of the land form, and we will be study in this chapter. A volcano is the event or their opening in earth as a crust through which is the molten rock material. And rock fragment is the ash and the stems or the other hot gases are emitted slowly or forcefully in the course of eruptions. And these materials are thrown out from the hot interior of the earth to be surface. Such a vent to the openings and occur in those parts of the earth crust and where rock is still are relative to the beak. Here show the most important diagram is volcanic cone. There is the earth and the crust and the pipe and ducts and the ash layer. The lava is a flow here and the subsurface is craters and the conlet and craters is the most important diagram here. You may be as wondering and the why such eruptions take place. Actually, volcanoes are evidence of the presence of the intense heat and pressure exerting within the earth. Hot molten rock materials and then there is solid outer crust is known as the magma. What is the magma here? The hot molten rock materials when their solid outer crust is known as a magma. When this magma is thrown out from the magma chamber to the earth's surface is known as the lava. There is a figure 4.5. There is a magma and the gases stored within the earth's surface keep a try to come out to be surface through all lines of weakness anywhere in the crust. The thermodash is a force created by the magma and it is a gases creates as a hole in the crust and the lava is spread out on the surface along with the ash and fragmented rock material. And the process by which is a solid liquid and the gaseous materials escape from the earth as interior to the surface of earth is called volcanism. Two important things here arrive here. Volcano is the opening in the earth as a crust through which the molten rock materials are thrown out slowly or forcefully. Is depending upon the force of eruptions. And second here, cause of volcanic eruptions is the excessive pressure scattered by the magma and the hot gases on the earth as a crust. The next important point here, the process which is a solid, liquid and gases is a material escape from the earth as interior to its surface known as the volcanism. There is a most important here. The volcanic material is the accumulate is around the opening or hole and taking the force of a cone. The top of the cone has a funnel shaped and depression which is the called to the
Creator show the diagram. There is the most important here. यहाँ पर जो हमारा अत्यंत महत्वपूर्ण आया है टॉपिक ज्वालामुखी। देखिए ज्वालामुखी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, जिसे वोल्केनोस के नाम से जाना जाता है। कहते हैं ज्वालामुखी भूपट्टी में वह जो है छिद्र या द्वार होता है जिसके द्वारा शैल पदार्थ, शैल के टुकड़े, राख या जल वाष्प तथा अन्य गर्म गैस धीरे धीरे अथवा तेजी से जो है उद्गार के समय निकलते हैं, और ये पदार्थ पृथ्वी के आंतरिक गर्म भागों से जो है भूपृष्ठ पर फेंके जाते हैं। और इस प्रकार के छिद्र या जो भूपृष्ठ जो है पृथ्वी के उन भागों में पाए जाते हैं जहाँ शैल जो है संस्तर अपेक्षाकृत कमज़ोर होते हैं। तो ये ज्वालामुखी ही होते हैं जो कि नीचे जो है धरती में दबे होते हैं और किसी जो है दबाव के कारण जो है ये पृथ्वी से बाहर निकलते हैं, और इनका निकलने से कई तरह से जो है तबाही भी होती है, लेकिन इनका निकलना एक स्वाभाविक क्रिया होती है। अगर हम वोल्केनोस के बारे में जाने यानी ज्वालामुखी के देखें तो डायग्रामेटिक में भी बहुत कुछ आपको समझ में आ सकता है। यहाँ पर ज्वालामुखी शंकु के रूप में दिखाया गया है। आप देख सकते हो कि पृथ्वी है, भूपट्टी है, और यहाँ नालिकाएं के साथ ऊपर जा रहा है जिसमें ड्राइक्स, शंकु और जो है केटर, सहायक केटर्स और लावा प्रवाह यहाँ दिख रहा होगा, राख की परत जो होगा जमा हो जाता है भूपट्टी पे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डायग्राम है जिससे हमें लावा के जो है विस्तृत जानकारी मिल रही है, और ये भी समझ में आ रहा है कि पृथ्वी के जो निचले पार्ट में वहाँ पर ज्वालामुखी जो है काफ़ी सक्रिय रहते हैं, और ये सक्रिय होते हैं और कई दबाव के कारण जो है ये विस्फोट होते हैं। तो इससे ये पता लग सकता है कि जो पृथ्वी का निर्माण हुआ था कई मायने में देखा जाए तो पहले एक ही ग्रह रहा होगा, और उनके विस्फोट के कारण ये जितने दूर गए उतने ठंडा होते गए। क्योंकि कुछ जो है इसका प्रमाण ये भी दर्शाता है कि ये भी पहले आग का गोला ही था, क्योंकि अगर आग के गोले जो है इसके भूपट्टी के नीचे प्रेजेंट है तो इसका मतलब है कि ये भी उसी पार्ट का ही किस्सा था। तो ये काफ़ी कुछ जो है हमें ज्वालामुखी शंकु समझाने की यहाँ पर कोशिश कर रहा है। आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि ये उद्गार होते क्या हैं, आखिर उद्गार होता क्या है। वास्तव में ज्वालामुखी इस तथ्य के प्रमाण है कि पृथ्वी की आंतरिक भागों में अत्यधिक गर्मी या दबाव विद्यमान है। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि ज्वालामुखी जो है ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि पृथ्वी के आंतरिक भागों में जो है अत्यधिक गर्मी या दबाव विद्यमान है, जिसके कारण से ज्वालामुखी समय समय पर जो है फटती है। पृथ्वी के बाहर ठोस परत के निचले पिघले शैल पदार्थ जिन्हें मैग्मा कहते हैं, जो शैल पदार्थ होते हैं उसको मैग्मा के नाम से जाना जाता है, और ये पिघले हुए फॉर्म में होते हैं। अब इतना अधिक टेम्परेचर होगा तो पिघलना तो जो है जनरली बात है। जब ये बाहर निकल जाते हैं तो ठोस परत के रूप में जो है बदल जाते हैं, अधिक दबाव होते हैं, और जब ये मैग्मा छिद्र या दरार द्वारा मैग्मा चैम्बर से बाहर धरातल पर जमा हो जाता है तब इसे लावा का नाम दिया जाता है। ठीक है, मैग्मा तथा गैसों जो भूपट्टी से नीचे जमा है वो बाहर आने का सदैव प्रयास करती रहती है। जब ये अपने दाब में भूपट्टी में कोई जो है कमज़ोर रेखा या छिद्र बनाने में सफल हो जाती है तो ये गैस जो है पिघले शैल पदार्थ, शैल की जो ठोस टुकड़ियाँ, राख आदि का साथ तेज़ी से धरातल पर फैल जाती है। जब ये ठोस पिघले शैल तथा गैस पृथ्वी के आंतरिक भागों से निकलकर धरातल पर आती है तो यही प्रक्रिया जो है ज्वालामुखी प्रक्रिया कहलाती है। तो इससे साफ हो गया है कि जो गैस पिघले हुए होते हैं कोई ना कोई माध्यम ढूंढते हैं, ठीक है, पृथ्वी से निकलने से कोई भी छिद्र उनको दिख जाता है तो उसी छिद्र का जो माध्यम बना लेते हैं और डायरेक्ट जो है वो पृथ्वी से बाहर आ जाते हैं, और पृथ्वी में आने की प्रक्रिया और फैलने की प्रक्रिया को ही ज्वालामुखी प्रक्रिया कहलाती है। यहाँ पर अगर हम सभी बातों को अगर सारांश के रूप में देखें तो यही बात साफ किया गया है कि ज्वालामुखी भूपट्टी में वह छिद्र होता है जिसे पिघले शैल पदार्थ मध्य अथवा तीव्र गति से बाहर निकलते हैं। पदार्थों के बाहर निकलने की गति उद्गार की तीव्रता पर निर्भर करता है, यानी उद्गार कितना उनके प्रेशर है इस बात पर जो है डिपेंड करता है, और इसी के रिगार्डिंग यानी बाहर निकलता भी है। ज्वालामुखी उद्गार का मुख्य कारण मैग्मा और जो है गर्म गैस द्वारा भूपट्टी पर डाला गया अत्यधिक दबाव हो सकता है। यानी ज्वालामुखी उद्गार का मुख्य कारण मैग्मा और गर्म गैस द्वारा जो है भूपट्टी पर डाला गया अत्यधिक दबाव हो सकता है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा ठोस पिघले शैल व गैस पृथ्वी के आंतरिक भागों से मुक्त होकर उसके धरातल पर आती है ज्वालामुखी प्रक्रिया कहलाती है। तो इससे आपको डेफिनेशन भी मिल गया कि ज्वालामुखी किसे कहते हैं। ज्वालामुखी का अर्थ ही होता है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा ठोस पिघले गैस या गैस पृथ्वी के आंतरिक भागों से मुक्त होकर उसके धरातल पर आती है, उसे हम ज्वालामुखी प्रक्रिया कहते हैं।
Here the most important chapter, evolution of the landform due to the internal force. There is a types of here or types of volcanoes. There is a most important topic arrived types of volcanoes. The volcanoes are the classified on the basis of the nature of the volcanism, and this basis include the frequency of the eruptions, motion of eruption, and is the fluidity and their manner of which is the volcanic materials escape to be surface of the earth. One, the basis of the frequency of eruptions and volcanoes are three types. There is a first year active, second is a dormant, and third is the excitant. There is the most important three types of volcano here: active, dormant, and the excitant. There is the most important. The volcanoes which they erupt and the frequencies have erupted to the recently are on the action. Currently, it's called active volcanoes. What is the active volcanoes here? The active volcanoes which is erupted and the frequently have erupted to the recently are in the action. Currently, is called active volcanoes. Important among these is include Stromboli's and Mediterranean and the Kato is the Indonesia and the Malayan and the Philippines. And the Malona is the low is the Hawaii Island is the Melbourne Island in India. The volcano which is have not erupted in the recent time is known as the dormant volcano, and they are as such as the sleeping volcanoes. Important among these are the volcanoes of Italy and is the Cotopaxi and South America. That is the most important here. The contraries to this two is, and there is a volcanoes which has not erupted in the historical time, and these are called the extincted volcano. The mount is a Popa of Myanmar and Burma is a Kilimanjaro is Tanzania and important extensions in volcano. It's a not a way to the very simple to categories is a volcano as a dominant and extended. For example, there is a Savansis and Krakatoa is become suddenly active after landing is a dormant for the hundreds of years. There is the most important. The also important here are box. They are on the basis of the frequencies, eruptions, and volcanoes, and classified in active, dormant, and extended volcanoes. The active volcanoes are erupting currently or have erupted recently. The dormant are those is volcanoes which have erupted at least once in the human history and are not active now. The excited is volcanoes are those which have not erupted during to the long human history. The one the basis of the mood of eruptions is the volcanoes are divided into two types. There is the eruption of the volcano divided into two types: center types of volcanoes and fissures types of volcano. Fissures as a types in volcano is the most important. When the eruptions there is a volcanoes take place from an vent to a hole, it's called center types of volcano. What is center type volcano here? When the eruptions in the volcano take place from a vent or a hole, it is called the center types of volcano. Different types of domes are is a conical hills are formed by these types of eruptions, and depending on the nature of erupted of materials. The majority of volcanic eruptions in their wall are these types. The other characteristics of their mode of eruptions and that is a marked by violent and explosions due to sudden escape of gases and molten rock through their hole. The resources of the Fusiyama and belong to this group of volcano. There is a more important here. Fusiyama and Fusiyama is belong to this group of volcano. Sometimes the deeps ignited as the cracks devolved due to the earthquake and the faulting. Their magma start flow through then the craterlets, and this mode of eruptions is the call is a fixture and types of eruptions. This is a eruptions help in the formation of thick horizontal sheet of lava or low dome shaped is volcano with a boarded base. It is maybe also formed and what are the identified as a lava plateaus and the lava shaded and Deccan traps of India is one example of is a fixed types of eruption. And the central types of volcano erupt from to the vent hole and result in formation of the conical hill. And second point important here, fissure types of volcanoes erupt through their
crack and fracture is causing the formation of the plateaus and shelled. On the basis of the fluidity of the lava, there are two types of volcano. There is the most important here on the basis of fluidity of lava. The first here, volcano of basic lava and volcanoes of acid lava. That is the most important. Since there is a basis lava is rich in the metallics, minerals and has a low melting point. It has a greater fluidity. In these types of eruptions is the lava flow far and the valley currently is with a greater speed and the spread out in the things seated over to the is a large area. Thus, it is a lead to be a formation of the serrate and the lava domes. The serrate of volcano of the Havanis Island is the Pacific Ocean is one of these volcano. That is the most important here. Considered as a basis lava, acid lava is rich in the silica and has a relative to high melting point, and therefore it is a highly viscous as a solidifies liquidly as a quickly. Hence, there is a acid lava is a volcano accustomed to the formation of usually higher land features with the steppers and slope. The acid lava is a cones or a steppers is a slope than the basis lava is a shredded. Here show the diagram of basis lava, shredded and the acid lava cones. There is a most important diagram here. Extensive lava, shredded and the crater and highly fluid lava. The earth is a crust and the secondly acid lava is a cone here. A steeply sloping side is a craters and strictly viscous lava and the earth is crust here. There is a most important diagram shown in this picture. The next point here, distribution of the volcanoes. There is a most important point here arrive. There are about 500 volcanoes in the world. The most of these volcanoes are there found in the three well-defined belt. There are is a Pacific belt and mid-world of mountain belt and the African Rift Valley belt. Thus, the volcanoes are closely related to their region of intense folding and faultings. They occur along to the coastal mountain range on the island and it is a mid-oceans. Interior part of the sediment are generally and free from their activity. Most of the activity volcanoes are found in the Pacific region. About 83 active volcanoes are located in the Mediterranean and the region. There is the most important. The circum-Pacific region has two greatest is a concentration of volcanoes. That is why it is called Pacific Rings of Fire. And this is a ring extend along to the Andes and the mountain of South America to the Alaska and from to the Australian island to the Japan and the Philippines, Indonesia to the New Zealand. There is the most important. The mid-world mountain is a belt is occupied their second position with regard to be the number of volcanoes. It is a run from the Alps. There is a Europe to the Asia Minor and there is a crossing through the Himalayan region joined to the circum-Pacific belt. The Africa is a Rift Valley is a region ranked third. Most of the volcanoes are excited here. The Mount is a Cameroons in this only active is a volcano which is situated in the central West Africa. Here show the most important map here, the distribution of the volcanoes. Here the volcano is here triangle shape. There is a many area even to the upper to the Indian side and there is the most important public oceans and there are other sides of the distribution of volcano here. यहाँ पर जो हमारा अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक आया है ज्वालामुखी के प्रकार। देखिए ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं जानना बहुत रोचक रहेगा और समझ के लिए भी जरूरी है। कहते हैं ज्वालामुखी प्रक्रिया के आधार पर ज्वालामुखी को जो है वर्गीकृत किया जाता है। उद्गार की जो है बारंबारता और ज्वालामुखी पदार्थों के बाहर निकलकर पृथ्वी के धरातल पर आने के ढंग उद्गार की प्राकृतिक अथवा तरलता वर्गीकरणों को प्रमुख आधार माना जाता है और इसी बेस पे जो है इसको वर्गीकरण भी किया जाता है। उद्गार की जो है बारंबारता के आधार पर ज्वालामुखी तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है सक्रिय ज्वालामुखी, एक होता है प्रसूति ज्वालामुखी और एक होता है विलुप्त ज्वालामुखी। जैसे नाम से भी समझ में आ रहा है कि सक्रिय और प्रसूति सुप्त और विलुप्त ज्वालामुखी। देखिए वो ज्वालामुखी जिनमें समय समय पर उद्गार होते रहते हैं, यानी वे ज्वालामुखी जिनमें समय समय पर उद्गार होते रहते हैं अथवा वर्तमान में उद्गार
हो रहे हैं उन्हें सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। और आप कहते हैं ये ज्वालामुखी बहुत विस्तृत है और ये कई मानव इंसानों के लिए जो है काफ़ी खतरा का सबब भी है। इस प्रकार प्रमुख ज्वालामुखी जो है भूमध्य सागर में स्टोम वैली, इंडोनेशिया में क्राटोकोटोआ, फिलीपींस और म्यान हवाई द्वीप समूह में जो मेनाओस और भारत में वैरन द्वीप में है। तो ये कहा जा सकता है कि विश्व में हर जगह जो है सक्रिय ज्वालामुखी है बनी हुई है, यानी एक्टिव जो है वोल्केनोस हर जगह आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि बहुत बड़ी बात है। उसके पश्चात प्रसुप्ति ज्वालामुखी वे हैं जिनमें वर्तमान काल में उद्गार नहीं हुए हैं, यानी अभी तक उसका जो है उत्पत्ति नहीं हुआ है। वास्तव में उन्हें सोए हुए ज्वालामुखी भी कहा जा सकता है, यानी ये प्रसूति ज्वालामुखी जो है अभी सोए हुए हैं, समय आने पर ये भी अपना जो है प्रकोप दिखाएंगे। इटली का जो है वेसुवियस तथा दक्षिण अमेरिका का कोटोपैक्सी प्रमुख प्रसूति ज्वालामुखी है, जो कि एक सोए हुए ज्वालामुखी के जैसा है। इन दो प्रकार के ज्वालामुखी के विपरीत कुछ ऐसे ज्वालामुखी है जिनमें ऐतिहासिक काल में उद्गार नहीं हुए हैं, उन्हें विलुप्त ज्वालामुखी कहते हैं, यानी जो विलुप्त हो चुके हैं। म्यांमार बर्मा का जो है माउंट पोपा और तंजानिया और किलिमांजारो प्रमुख विलुप्त ज्वालामुखी के नाम है, यानी म्यांमार में बर्मा जो है माउंट पोपा और तंजानिया के जो है किलिमांजारो प्रमुख विलुप्त ज्वालामुखी के अंतर्गत आता है। किसी भी ज्वालामुखी को जो है प्रसूति या विलुप्त ज्वालामुखी के प्रकार में बांटना आसान नहीं होता है। उदाहरण के लिए वेसुवियस और जो है क्राटोकोटोआ हजारों वर्षों तक विलुप्त रहने के बाद उनमें अचानक उद्गार होने लगे और सक्रिय ज्वालामुखी हो गए। कहते हैं उद्गार की बारंबारता के आधार पर ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं, जिसके बारे में हमने चर्चा भी किया है, सक्रिय, प्रसुप्त और विलुप्त। तो ये आपको याद हो जाएगा बहुत आसानी से, जो है ये सक्रिय होंगे, प्रसुप्त होंगे और विलुप्त होंगे। उसके पश्चात सक्रिय ज्वालामुखी क्या हुआ है? देखिए सक्रिय ज्वालामुखी जिनमें वर्तमान में हाल वर्षों में उद्गार हो रहे हैं या हुए हैं, उसे सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं, जो अभी भी हो रहे हैं। प्रसुप्त ज्वालामुखी वे हैं जिनमें मानव इतिहास काल में कम से कम एक बार उद्गार हुआ है जरूर, और जो वर्तमान में काफ़ी सक्रिय नहीं है, लेकिन अभी जो है सक्रिय नहीं है, विलुप्त हो चुके हैं। तो ये प्रसुप्ति ज्वालामुखी यानी कभी ये एक्टिव हुआ करते थे। विलुप्त ज्वालामुखी का मतलब वही होता है कि वे जिनमें लंबे मानव इतिहास काल में उद्गार नहीं हुआ है अभी तक, लेकिन वो है, आने वाला समय में जो है इसका उद्गार हो सकता है, तो इसे हम विलुप्त ज्वालामुखी के नाम से जानते हैं। उद्गार की रीति के आधार पर ज्वालामुखी 2 प्रकार के होते हैं। अगर देखा जाए तो केंद्रीय उद्भेदन ज्वालामुखी तथा दरारी उद्भेदन ज्वालामुखी, इसको 2 के रूप में इसको जो है परिभाषित किया जा रहा है उद्गार की रीति के आधार पर ज्वालामुखी को। जब किसी ज्वालामुखी में उद्भेदन एक छिद्र या द्वार से होता है तब उसे हम केंद्रीय उद्भेदन ज्वालामुखी कहते हैं, यानी केंद्रीय उद्भेदन ज्वालामुखी कहलाता है। और इस प्रकार के ज्वालामुखी विभिन्न प्रकार के जो है गुमंदकार होते हैं, अथवा ये शंक्वाकार पहाड़ियों का जो निर्माण भी करते हैं, यानी 2 होते हैं, या गुमंदकार हो या शंक्वाकार हो, ये पहाड़ियों का निर्माण भी इन्हीं कारणों से होती है। इन पहाड़ियों का आकार जो है ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थों की प्राकृतिक पर निर्भर करता है। संसार के अधिकांश ज्वालामुखी इसी प्रकार के हैं, और इस प्रकार के ज्वालामुखी जो है उद्भेदन की एक अन्य विशेषताएं यह है कि पिघले हुए शैलों एवं गैसों के एक छिद्र या द्वार से निकलने के कारण उद्गार अत्यधिक विस्फोटक होते हैं। वेसुवियस और प्लेजियमिया इस वर्ग के प्रमुख ज्वालामुखी के अंतर्गत आता है। कभी कभी भूकंप या भ्रमण से जो है भूपृष्ठ पर गहरी और लंबी दरारें पड़ जाती है। मैग्मा इन दरारों से धीरे धीरे बाहर की ओर निकलने लगता है, और इस प्रकार के उद्भेदन को जो है दरारी उद्भेदन कहते हैं। और इस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गारों से लावा की मोटी मोटी परतें जमा हो जाती है, और इसे जो है लावा पठार या लावा शीट भी निर्माण होता है। भारत में दक्कन का पठार इस प्रकार के उद्गार का एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल के रूप में देखा जा सकता है। यहाँ पर अगर हम बात करें निचोड़ की, तो कहते हैं केंद्रीय प्रकार की ज्वालामुखी में छिद्र या द्वार से उद्गार होते हैं तथा इस प्रकार के उद्भेदन के कारण एक शंक्वाकार पहाड़ी का निर्माण होता है,
जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय प्रकार के ज्वालामुखी में छिद्र या द्वार से उद्गार होते हैं तथा इस प्रकार के उद्भेदन के कारण एक संघाकार पहाड़ी का निर्माण होता है। दरारी प्रकार के ज्वालामुखी में जो उद्भेदन एक दरार से होता है तथा इस प्रकार के उद्गारों से जो है पठारों तथा शीरों का निर्माण होता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लावा की तरलता के आधार पर ज्वालामुखी दो प्रकार के होते हैं, एक क्षारीय लावा के ज्वालामुखी तथा एक होते हैं अम्लीय लावा के ज्वालामुखी। देखिए, लावा की तरलता के आधार पर ज्वालामुखी को दो भागों में विभक्त किया गया है, क्षारीय लावा के ज्वालामुखी और अम्लीय लावा के ज्वालामुखी। यहाँ पर देखा जाए क्षारीय लावा में जो है धात्विक खनिज का अनुपात अधिक होता है, यानी धात्विक खनिज का अनुपात जो होता है क्षारीय लावा में अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है तथा इनका पिघलना बिंदु नीचे होती है, यानी पिघलने की जो बिंदु होती है काफ़ी नीचे होता है। अंततः क्षारीय लावा अधिक तरल होता है और इस प्रकार के ज्वालामुखी के उद्गारों में जो है लावा दूर दूर तक शीघ्र या तेज़ी से फैल जाता है और इसे लावा की पतली परतें विस्तृत क्षेत्र में जमा हो जाता है। इस प्रकार के उद्गारों से जो है शीरों तथा लावा गुंबदों का निर्माण होता है। प्रशांत महासागर में हवाई द्वीप समूह में स्थित शीर ज्वालामुखी इस प्रकार के ज्वालामुखी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। तो ये कई मायने में इम्पोर्टेंट भी है, इसको आपको समझना चाहिए। क्षारीय लावा के विपरीत जो है अम्लीय लावा में सिलिका की मात्रा अधिक होती है। देखिए, ये कई मायने में इम्पोर्टेंट है कि क्षारीय लावा के विपरीत अम्लीय लावा में जो है सिलिका की मात्रा अधिक होती है तथा इसका जो है पिघलने बिंदु अपेक्षित ऊंचा होता है, अंततः यह अत्यधिक गाढ़ा होता है तथा शीघ्र ही जम जाता है। यही कारण है कि अम्लीय लावा ज्वालामुखी जो है सामान्यतः ऊंची भू आकृतियों का निर्माण करती है और इन भू आकृतियों के ढाल तीव्र होते हैं। अम्लीय लावा शंकु के ढाल क्षारीय लावा और शीरों से अधिक तीव्र होते हैं, जैसे कि चित्र में भी यहाँ दर्शाया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि क्षारीय लावा शीट दिख रहा है और अम्लीय लावा शंकु दिख रहा है। तो ये डायग्राम से भी काफ़ी समझ में आ सकता है कि भूपट्टी में ये जो है विस्तृत लावा परतें दिख रहे हैं और कैटर भी है जो अति तरल लावा को जो है रिप्रेजेंट करता है। दूसरी तरफ अगर बी पार्ट में देखिएगा तो अम्लीय लावा शंकु आकार का जो तीव्र ढाल के ऊपर विस्तृत है और इसमें से जो है चिपचिपा रासायनिक लावा निकलती है जो कैटर के साथ निकलती है, जो कि ये डायग्राम भी काफ़ी कुछ बताने के लिए जो है अपने आप में पर्याप्त है। अगर बात हम यहाँ पर देखें क्षारीय लावा के बारे में, तो क्षारीय लावा अधिक तरल होता है। ये आपको समझना चाहिए कि जो क्षारीय लावा होती है वो अधिक तरल होता है, अंततः शीघ्रता से दूर तक ये फैल जाता है और इसके कारण जो है शीरों का निर्माण होता है। शीरों का निर्माण होने के कारण जो है क्षारीय लावा ही मानी जाती है। अम्लीय लावा अत्यधिक गाढ़ा होता है और इस प्रकार उद्गार से तीव्र ढाल वाले शंकु निर्मित होते हैं, यानी अम्लीय लावा अत्यधिक गाढ़ा होता है और इस प्रकार के उद्गार से तीव्र ढाल वाले शंकु निर्मित होती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ तक बात रखता है। अगली पॉइंट ये दर्शाती है कि ज्वालामुखी का वितरण। देखिए, ज्वालामुखी वितरण किस प्रकार का, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन इसका है। कहते हैं संसार में लगभग जो है 500 ज्वालामुखी प्रेजेंट है, यानी संसार में 500 ज्वालामुखी का जो है केंद्र रूप में देखा गया है और इनमें से अधिकांश 3 निश्चित जो है पेटियों में पाए जाते हैं, यानी अधिकांश 3 निश्चित पेटियों में पाए जाते हैं। ये 3 पेटियां हैं, प्रशांत महासागरीय पेटी, मध्यवर्ती पेटी तथा अफ्रीका दरारी घाटी पेटी, यानी ये 3 क्षेत्रों में पाया जाता है, प्रशांत महासागर में, मध्यवर्ती में और अफ्रीका दरारी घाटी में पाया जाता है। और इस प्रकार ज्वालामुखी उन क्षेत्रों में मुख्य रूप से पाए जाते हैं जहाँ अत्यधिक वर्लन या भ्रंशन पाए जाते हैं। वह तटीय पर्वतीय श्रेणी के साथ द्वीपों तथा महासागरों के आंतरिक भागों में पाए जाते हैं। महाद्वीपों के आंतरिक भाग इनकी क्रियाओं को जो है सामान्यतः अछूते रहे हैं। अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में स्थित होते हैं। लगभग 83 जो है सक्रिय ज्वालामुखी भूमध्य सागरीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। देखिए, 83 जो है सक्रिय ज्वालामुखी भूमध्य सागरीय में पाए जाते हैं, ये भी बहुत विशिष्ट बात है। देखा जाए तो प्रशांत महासागर पेटी में सबसे अधिक ज्वालामुखी सकेंद्र है, यानी प्रशांत महासागरीय पेटी में सबसे अधिक ज्वालामुखी होने का संकेत मिला है और इससे जो है इसलिए इसे प्रशांत अग्निवलय भी कहते हैं, यानी इसको हम प्रशांत अग्निवलय भी कहते हैं, अग्नि का बना हुआ। यह वलय दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत श्रेणी के साथ से आरंभ होकर अलास्का तथा जो है अल्यूसियंस द्वीप समूह में जापान, फिलिपाइन, इंडोनेशिया और न्यूजीलैंड तक ये फैली हुई है, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इम्पोर्टेंट यहाँ पर यह भी है कि आप मानचित्र से भी इसको जो है भली भांति समझ सकते हो कि ये कहाँ कहाँ पर जो है सक्रिय है।
यहाँ पर अगर आपको डॉट लाइन दिख रहा होगा तो ये लाइन जो है सक्रिय ज्वालामुखी को जो है केंद्रित करता है। अगर आपको भारत सेंटर में नक्शा दिख रहा होगा भारत का, तो इसमें भी जो है ऊपर देखिएगा 3 जगह पर जो है ये सक्रिय है। और अदरवाइज अगर दूसरे साइड देखिएगा तो कई मायने में हर जगह आपको जो होगा यहाँ पर ज्वालामुखी सक्रिय रूप में दिख रहा होगा। इसके आगे और बढ़िएगा तो और भी पता लगेगा। अब देखिए कितने जगह पर जो है ये सक्रिय ज्वालामुखी है, हिंद महासागर हो, प्रशांत महासागर हो, विस्तृत रेखाएं हो, हर जगह जो है ये काफ़ी विस्तृत है। सबसे अधिक तो ये देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया की साइड है और अमेरिका के साइड है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है जो कि ज़रूरी भी है। अंटार्कटिका सागर के महासागर के पास में भी बहुत से ज्वालामुखी सक्रिय रूप में फैले हुए हैं। महासागरीय पेड़ी से मिल जाती है और अफ्रीका दरार घाटी प्रदेश का तीसरा स्थान माना जाता है। यानी डायग्राम में हमने जो देखा वो बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ज़रूरी भी थी, क्योंकि यह अफ्रीका दरारी घाटी प्रदेश का तीसरा स्थान है और इस पेटी के अधिकांश ज्वालामुखी विलुप्त प्रकार के ही है, यानी सारे के सारे विलुप्त प्रकार के हैं। केवल माउंट जो है कैमरून ज्वालामुखी जो है पश्चिमी मध्य अफ्रीका में स्थित है। देखिए कैमरून ज्वालामुखी जो है पश्चिमी तथा मध्य अफ्रीका में स्थित है, सक्रिय ज्वालामुखी के रूप में है। ये कई मानने में इंपॉर्टेंट बात होता है माउंट कैमरून के विषय में, क्योंकि ये जो है यूपीएससी एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है और कई एग्ज़ाम में भी काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चन के रूप में होता है कि माउंट कैमरून ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है। तो ये मध्य अफ्रीका में स्थित है और ये सबसे अच्छा सक्रिय ज्वालामुखी के रूप में है। कहते हैं अगर हम देखें तो अगर पॉइंट जो हमने पढ़ा है, कहते हैं संसार में लगभग 500 ज्वालामुखी हैं। वो 3 निश्चित पेटियां हैं, प्रशांत महासागर को जो घेरने वाली पेटी, मध्यवर्ती पर्वतीय पेटी तथा पूर्वी अफ्रीका दरार घाटी में स्थित है। कहते हैं अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी जो है प्रशांत महासागरीय पेटी में स्थित है। देखिए ये भी क्वेश्चन जो है यूपीएससी के एग्ज़ाम में कई बार आ चुका है कि अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी जो है कहाँ पर है, तो प्रशांत महासागरीय पेटी में स्थित है और इसे हम प्रशांत अग्निवलय भी कहते हैं। तभी तो कहता हूँ कि ये जो मैं चैप्टर आप लोगों को करवाता हूँ ये कई मायने में इंपॉर्टेंट होता है और ये हर एक क्लास के बच्चे के लिए ज़रूरी है। चाहे किसी भी एग्ज़ाम को टैग कर रहे हो, चाहे आप यूपीएससी एग्ज़ाम कर रहे हो, चाहे कोई भी इंट्रेंस टेस्ट कर रहे हो, कहते हैं इस सिलेबस से आगे कुछ भी नहीं आता है। तो आपको अच्छे से इसको ध्यान से पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए और सोचना चाहिए। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब भी करना चाहिए। इसमें से 2 बातें इंपॉर्टेंट रहता है। पहली ये कि जितना हो सके इस वीडियो को दूसरे बच्चों तक पहुंचाने में आपने त्रिपाण सेंटर का हेल्प करना है। दूसरी बात ये रहता है, पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके सेव करना भी आपका फ़र्ज़ बन जाता है, नहीं तो आपको शायद दूसरे वीडियो का नोटिफिकेशन भी ना मिले और बाद में अगर आप जो है यूट्यूब पर चैनल को रिसर्च करोगे तो शायद रिसर्च में भी ना आए, क्योंकि अगर आप त्रिपाण लिखोगे तो वो त्रिपुरा कर देगा तो कन्फ्यूज़न बना रह सकता है। तो इसलिए जो है अगर आप समझदारी के काम यही होती है कि आप इस चैनल को जो है सेव करके अपने मोबाइल में जो है सेव कर लो, जहां पर इसका जो है होम पेज मिल जाएगा और होम पेज मिलने से जो है हर आपको वीडियो जो है सुचारू रूप से प्राप्त हो जाएगी, जिससे आप समझ भी सकते हो, सोच भी सकते हो और विचार भी कर सकते हो।